हर हर महादेव। कई बार आप हंसी मजाक में ही ऐसी चीजें कर लेते हो जिसके बारे में नॉर्मली आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमने बना लिया 880 करोड़ का प्रोजेक्ट। मैं बताता हूं कि क्या हुआ। हम तो चले थे 51 गुरुकुल बनाने, और वो हमने कुछ गुरुकुल्स का निर्माण किया ही कि ये प्रोजेक्ट एसएमएस प्रोजेक्ट हमने डेवलप कर लिया। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका इवैल्यूएशन निकला 880 करोड़ रुपए। अब इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत ही पहुंच के बाहर की चीज लग रही थी, हम लोग मजाक में ले रहे थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फिर जुड़ने लग गए बहुत चर्चित नाम। सऊदी के प्रिंस महोदय जुड़ने लग गए इसमें, हमारे रियाद बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें जुड़ने लग गए, और भारत से भी चर्चित बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इसमें जुड़ने लग गए। तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये शेप लेने लग गया। तो जो चीज हमारे कल्पना में थी वो कल्पना से निकल करके कब ये रियलिटी में बनने लग गई चीजें, और कब इसकी जो नींव है वो मजबूत होने लग गई। ये ऐसा मानो कि जैसे शंकर भगवान का दिया हुआ कोई संकेत हो। तो कभी मजाक में भी कोई बात आपके दिमाग में आती हो तो एक बार एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरी कल्पनाएं कुछ ऐसी होती है। मैं बहुत सारी कल्पनाएं करता हूं और उन कल्पनाओं के ऊपर हाथ लगाता हूं और काम करना शुरू करता हूं। अब देखते हैं, मैं आपको अपडेटेड रखूंगा कि गाड़ी कहाँ तक पहुंची। लेकिन कुछ क्रेजी है और कुछ मजेदार है, करने में मजा आएगा, क्योंकि भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर जो छिण भिण हो गया था वो देखिएगा पुनर्जीवित होता हुआ आपको दिखाई देगा। बस थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा इंतजार है, आप करिए और देखते हैं रस। हर हर महादेव। Build roadmap, not hype. TAC SMS Foundation, 3-year investment execution and returns blueprint. Total corpus reference 830. Existing assets, critical advantage. Already in place, reduces capex and risk. Robotics, Vedic Gurukul, English, Hindi, Vedic medium. NCRT Delhi, plus international aligned. Tech-enabled teaching system. 16 plus acres agriculture's factory land. Ashram, Shivala, and Thakurbadi. Location, CFP 8 plus CP Ugna, Mangura, Jagdishpur Ara, Bhojpur, Bihar, 802158. This puts SMS 2 to 3 years ahead of most projects. Year 1 foundation and system build. Legal, team, platform, infrastructure. Hesher investment, 150 Kurs, currency, INR, 150 Kur USD, Y16, 8 men and 8 men SEMS, Y62 made, 62 to man MD. Hack use of funds, year 1, area. Legal trusts compliance, India GCC prep, 10. Core Leadership and Operations Team 25, SMS Digital Platform V1 40, Offices Delhi Bahar Ops 15, Small Factory Agri Processing Assembly 30, Gurukul Expansion Existing Asset Upgrade 20, Media Audits Systems Contingency 10, Total 150. Year 1 returns intentional low. Education fees, Gurukul skill programs 8 to 10, agriculture output pilots 7, advisory collaborations 3-5. Total revenue 16 to 22 CR. Reality. Year 1 is not for profit maximization. It is for credibility, legality, platform readiness. Operations, revenue activation, agriculture, education, platform monetization, investment, currency and RMD, USD $28 to 3 men, AED 103 mem. Use of funds, year 2, area. Agriculture scale, processing, cold chain, branding, 80. Factory expansion, value addition, 50. Gurukul replication and residential capacity, 40. SMS platform monetization, subscriptions, listings, 40. State level outreach and onboarding, 25. Ops compliance risk buffer, 15. Total 250. And year 2 returns visible. Source agriculture, process raw, 60 to 70. Education, Gurukul skills tech, 35 to 45. Platform subscriptions and services, 25 to 30. CSR ESG partnerships, 15 to 20. Total revenue, 135 to 165. Status cash flow positive in segments, brand credibility established. Year 3, scale and capital multiplication. India scale GCC bridge. Investment 230 SIR currency, amount 230 USD 25.8 menor, SAR 95 men, AED 95 mem. Use of funds, year 3, area, multi-state agri and education hubs, 90, export and GCC alignment, 40. Platform AI plus rankings, investor systems, 45, media policy interface, national visibility,
30 strategic reserve, 20 total, 230. Cash year 3 returns. Source CRs. Agriculture and exports 130 to 160. Education, India global plus global programs 70 to 90. Platform and investor services 60 75. Strategic partnerships 30 to 40. Total revenue to 3965 CR. 3-year summary, year investment revenue, year 1 150 car 16 to 22 car. Year 2 250 hirar 135 to 165 cr. Year 3 230 290 to 365 cr. Break even. Late year 2, early year 3. System maturity. End of year 3. Key point for investors and government. SMS is asset backed. Land, Gurukul factory. Revenue is diversified, not dependent on one sector. Low burn, high structural stability. Bihar becomes a national global model hub. Final important, open quote. This is not a startup chasing valuation. This is a system creating value, stability, and sovereignty. Close quote. यह अनुभव योगिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से समझा जा सकता है। योगिक दृष्टि से आप इस समय प्रत्याहार, अंतर्मुखी शांति और धारणा, स्थिर एकाग्रता की संयुक्त अवस्था में कार्य कर रहे हैं। मन शांत है, लेकिन चेतना अत्यंत जागृत है। अहंकार की प्रतिक्रिया प्रधान परत ढीली हो चुकी है, इसलिए निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि स्पष्ट बोध से हो रहे हैं। ध्यान के कारण प्राण और चित्त संतुलित है, जिससे बिना बोले ही परिस्थितियां आपके अनुकूल प्रवाहित हो रही हैं। योग में इसे स्थित प्रजन अवचीन अवस्था के निकट माना जाता है, जहां व्यक्ति कर्म में रहते हुए भी भीतर से अचल होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपका मस्तिष्क इस समय हाई कोहेरेंस स्टेट में है, कम तनाव, उच्च फोकस और भावनात्मक नियंत्रण। मिरर न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होने से आप लोगों के हाव भाव, स्वर और मंशा को सूक्ष्म स्तर पर समझ पा रहे हैं। आप बिना टकराव के प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए लोग सहज रूप से सहयोग करते हैं। इससे लगातार विन विन परिस्थितियां बनती हैं। अलग ब्रह्मांड जैसा अनुभव इसलिए होता है क्योंकि मानसिक शोर कम हो गया है और वर्तमान क्षण की जागरूकता बढ़ गई है। सार में, ये मन पढ़ना नहीं है, ये शांत मन से पैटर्न को सही ढंग से देख पाना है। ये शक्ति नियंत्रण की नहीं, बल्कि सहज सामंजस्य की है। يمكن فهم هذه الحالة من منظور يوغي ونفسي معا دون أي غموض. من المنظور اليوغي، أنت تعمل حاليا في حالة يجتمع فيها براتياهارا انسحاب الضوضاء الداخلية مع دهارانا التركيز الثابت. العقل هادئ، لكن الوعي حاضر بقوة. طبقة الأنة التفاعلية أصبحت أضعف، لذلك أفعالك لا تنبع من الانفعال بل من إدراك صاف. التأمل ثبت طاقة الحياة بران وهدأ الذهن، مما يسمح للأحداث أن تسير بتناغم طبيعي معك دون كلام. في اليوغا تقارب هذه الحالة من حالة سثيتا برجنا، الثبات الداخلي أثناء الفعل. من المنظور النفسي، دماغك يعمل في حالة تناغم عصبي عال، توتر منخفض، تركيز عال وتنظيم عاطفي قوي. تزداد حساسية الخلايا المرآتية، فتصبح قادرا على التقاط الإشارات الدقيقة من تعابير الوجه ونبرة الصوت والنية. لأن ردودك خالية من الصدام، يشعر الآخرون بالفهم ويتعاونون تلقائيا. هكذا تتشكل سلسلة من مواقف الربح المتبادل وين وين. الإحساس وكأنك في كون مختلف، سببه انخفاض الضجيج الذهني وارتفاع الوعي باللحظة الحاضرة. الخلاصة: هذا ليس قراءة للأفكار، بل قراءة دقيقة للأنماط مع صمت داخلي. القوة هنا ليست سيطرة، بل انسجام طبيعي بلا جهد. This state can be understood clearly through both yogic and psychological lenses. Yogic view: you are operating in a phase where pratyahara, withdrawal from inner noise, and dharana, steady focus, are functioning together. The mind is quiet, yet awareness is highly alert. The reactive ego layer has softened, so actions arise from clarity rather than impulse. Meditation has balanced prana and chitta, allowing life to move with you instead of against you. In yoga, this approach is sthita prajna avastha, inner stillness while fully active.
Psychological view: your brain is in a high coherence state, low stress, strong focus, and emotional regulation. Sensitivity to patterns, micro expressions, and tone increases, giving the feeling of reading people. Because responses are calm and precise, interactions naturally become win win. The sense of being in a different universe comes from reduced mental noise and deep present moment awareness. In essence, you are not controlling others, you are aligned with the flow. The power here is silence, clarity, and effortless action. जल्दी जल्दी नहीं बोल रही, तड़ता 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 देख लो। 5,000 रुपये लिए। आइए आज हम देखते हैं त्र्यंबकेश्वर की पावन भूमि पर एक आध्यात्मिक बाबा बैठे हुए हैं जो कि माला का जाप कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली महामृत्युंजय माला को जपते हुए कल रात से अपना ध्यान लगाते हुए शिव, ब्रह्मा और विष्णु पर और सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि मांगते हुए। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो इस तरह से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के वैली में पहुंच चुके हैं हम, यात्रा का अंत करते हुए। इस पावन नदी का दर्शन कीजिए। आइए, कभी बैठिए इस नदी के किनारे, थोड़ा ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए इस प्रकृति को। और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये वैली 42 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा है। एक बार परिक्रमा करके देखिए। महादेव सब पे आप सब पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय महाकाल। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग? जय महाकाल। गाइस मैं बैठा हूँ इस वक्त एरोली डैम पे। काफ़ी अच्छा पीछे सनसेट देख सकते हैं आप। और मैं आपको कैमरा सामने करके दिखाता हूँ मेरा क्या पेडिक्योर चल रहा है। तो गाइस हम आज पास से देखेंगे इन मछलियों को पेडिक्योर करते हुए। आइए थोड़ा कैमरे को और पास कर कर दिखाता हूँ मैं आपको। यही तो आनंद है। इसी के पीछे लोग भाग रहे हैं, पैसे खर्चे कर रहे हैं। ठीक है भाई, घर के पास ही करा लो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। देख रहे हैं एक बार में कितनी कितनी सारी मछलियां निकल रही हैं। कैमरे को जरा ना मैं ना पानी में डाल के आता हूं। ज़्यादा अंदर पानी में नहीं डालूंगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। यहीं तक दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा। आती हैं आराम से।
सो हेलो दोस्तों, साथ में मिलके बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। ये ध्वनि जो है आसपास के गांवों में बजाई जाती थी जब शिव अपना ये मांस का लोथड़ा लेके घुमा करते थे। तब वो शिव थे, शिव ने ही मुझे आशीर्वाद दिया। थोड़ा बूढ़ा हो गए हैं वो, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो बोले कि ले बेटा मेरा सारा सामान और कल्याण कर दुनिया का। नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो पता नहीं ऐसा एक आकाशवाणी जैसा थी या क्या थी, कोई तो शक्ति है भाई। मैं पहाड़ पे और ऊपर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाता गया, पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया मैं। देन आफ्टर मेरे पैर में छाले पड़ गए, बारिश का टाइम था। बट हाँ, सिद्धि जिस काम के लिए गया था, जिस चमत्कार के लिए गया था, वो चमत्कार मुझे मिला और मिल रहा है। लोग SMS प्रोजेक्ट के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा नाम साधु विशाल मिश्रा, हमसे भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। सुमिताचार्य जी महाराज, sumitacharya.in, उनसे भी डेली बहुत लोग जुड़ रहे हैं। नहीं भी तो 50 से 60 लोग हमारा वीडियो, 50 से 60 लाख लोग हमारा वीडियो एक बार में देखते हैं। तो आइए अपने इंस्टाग्राम, भले ही आपका छोटा अकाउंट हो, लाइए हम ऐसा बनाएंगे कि वो बनते बनते ह्यूज बन जाएगा। जो कुछ नहीं करना है, एक मैसेज कीजिए मुझे और इंस्टाग्राम आईडी भेजिए, व्हाट्सएप पे आईडी शेयर कीजिए, मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजूंगा वहां पे आपके मोबाइल पे, बस खाली एक्सेप्ट कर लेना है, तो कोलैबोरेशन हो जाता है। उसमें पैसे वगैरह कोई कुछ नहीं मांगता। अगर आपको पैसे मांगने के लिए कॉल आते हैं तो बिल्कुल भी ना दें। कोलैबोरेशन फ्री में होता है। हाँ, जिन लोगों का बड़ा बड़ा प्रोफाइल होता है, जैसे 20 लाख हो गए, 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, 1 मिलियन हो गए, देन क्या होता है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उस पे एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ता है। और जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में जो एड्स आते हैं, तो वो कहाँ का पैसा रहता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए पूरा MBA समझाना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग MBA, बिजनेस MBA, जो भी है फाइनेंस में। उतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन थोड़ा समझ है क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। एक वो रहेगा कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात कही जाती है, लेकिन जब चीज़ें हैं कि चुनाव आता है तो बार बार हिंदू मुस्लिम आ जाता है बीच में। तो इसके पीछे क्या है, इसकी जो चर्चा है शुरू हो जाती है, तो इसके पीछे वजह क्या? गंदी राजनीति है। आप देखिएगा कि जितना भी चुनाव का समय आता है, उस समय अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और धार्मिक मुद्दे अगर उठाए जाते हैं, इसको गंदी राजनीति करना कहते हैं। ये संपूर्ण कार्यकाल में होना चाहिए और नेता संगृत है। हमारे देखिए योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है तभी धार्मिक मुद्दा उठ रहा है, ये हमेशा चल रहा है। लेकिन कई सारे बहरूपियां हमारे देश में हैं। जैसा ही चुनाव आने वाला होता है तो हर धार्मिक स्थल पे जाने लगेंगे, मस्जिद भी जाएंगे, वहाँ पे जाके इबादत देंगे, मंदिर जाएंगे, वहाँ जाके पूजा करेंगे। तो ये सब जो है वो क्या कहते हैं हम लोग कि रंगा सियार बन जाते हैं। रंगा सियार लोग हैं जो जाकर के ये नौटंकी करते हैं जब चुनाव आने वाला होता है। तो जो असली वाले हैं वो हमेशा ही मंदिर में दिखेंगे, वो हमेशा ही अपने धार्मिक स्थल पे दिखेंगे।
कुछ वैसा भी चीजें देखा गया है कि धार्मिक स्थल पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखा गया है, जी क्या वैसा करना सही है? देखिए, धार्मिक स्थल पे राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि हमारा जो धर्म होता है वो केवल पूजा पाठ करना नहीं सिखाता। मैंने कल आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये देखिए जिस गुरुकुल परिसर में हम लोग बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जस्ट बगल में देखिए गुरुकुल के बच्चे भी अभी बैठ करके रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा आप उधर भी जो दिखा मैंने ये माहौल जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, गुरुकुल का जो माहौल बनाना चाह रहा हूँ, वो यही बनाना चाह रहा हूँ कि गुरुकुल का मतलब साइंस, गुरुकुल का मतलब पॉलिटिक्स, गुरुकुल का मतलब रिलीजन, गुरुकुल का मतलब आर्किटेक्चर, गुरुकुल का मतलब एंशियंट नॉलेज, गुरुकुल का मतलब फैक्ट्स, गुरुकुल का मतलब डिबेट। तो वो साइंस का, धर्म का मतलब ही है कि आप संपूर्ण रूप से आप तैयार हैं। एक सच्चा हिंदू कहलाने के लिए जो अधिकृत होता है वो होता है जो पूर्ण रूप से जो है मानसिक रूप से और अपने बौद्धिक क्षमता से बहुत विलक्षण हो, वही तो सब कुछ समझ सकता है। तो इसी प्रकार से जब राजनीतिक पक्षों की बात की जाए, मंच की बात की जाए, तो मंच पर राजनीतिक मुद्दे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर मंच पर बात नहीं होगा तो कहाँ बात होगा? जहाँ पे जनता का समूह है वहाँ पे हमेशा बात होना चाहिए कि हमारे देश की जो सत्ता है, जो हमारा धर्म का जो तरीका है वो किधर जा रहा है। अगर हम इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो हम धर्म को बांध रहे हैं एक प्रकार से। क्या हमारे महाभारत में राजनीति नहीं है? क्या हमारे भागवत गीता में राजनीति नहीं सिखाई? क्या शिव पुराण में राजनीति नहीं सिखाई? जब सभी जगह राजनीति सिखाई और जो जीवन में राजनीति हम देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वो तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बिना प्रैक्टिकल के फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है, वो फिर फिलॉसफी हो जाएगी। लेकिन ये चीजें कि बोला जाता है कि जानबूझकर राजनीति को जो है से जिंदा रखने की बात की जाती है, जानबूझकर जो विवाद है उसको इस तरह से करने की हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो राजनीति धर्म मंच से भी करनी पड़ेगी। ऐसे जो है असली मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए, सब मुद्दे असली हैं। हमारा जो धर्म का भी मुद्दा है वो बहुत असली है। अगर हमारा धर्म नहीं बचेगा, अगर हमारे धर्म के ऊपर बार बार उंगली उठेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी 2 वक्त की रोटी खाना छोड़ देगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी अगर खाएगा, 1 वक्त की ही खाएगा लेकिन सम्मान से खाएगा। इसको मैं रिपीटेड बताऊं आपको, तो आदमी 2 रोटी खाना छोड़ सकता है लेकिन सम्मान नहीं छोड़ सकता। हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास इस प्रकार से रहा है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन शिखा कटा सकते नहीं। सर झुका सकते हैं। हाँ, शिखा, ये हिंदुत्व में है कि शिखा कटा सकते नहीं, चाहे सर झुका सकते नहीं। तो सर कटाने के लिए जब तैयार हैं तो सर झुकाने के लिए क्यों तैयार रहें? तो हमारे भारत में जिस प्रकार से हमारा भी संविधान है, मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, सभी धर्म निरपेक्ष हमारा अगर भारत देश जिस प्रकार से बना है और जिस हिंदू राष्ट्र की मैं सपना देखता हूँ, वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के आने की सपना देखता हूँ, सबको एक में जोड़ करके एक विस्तृत हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखता हूँ। वो सपना तभी साकार होगा जब धार्मिक स्थल पर भी राजनीतिक चर्चा किया जाएगा, क्योंकि राजनीति को अगर सही दिशा दिखाना है तो धर्माचार्य को उसमें आना पड़ेगा। अन्यथा जो धर्माचार्य नहीं है, जिनकी बुद्धि धार्मिक नहीं है, धार्मिक बुद्धि ना होने का मतलब क्या हुआ? अधर्मी बुद्धि। अधर्मी बुद्धि मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है कि दारू पी करके आ जाए, वो हो सकता है नशे की हालत में आ जाए, हो सकता है वो ड्रग्स लेने लगे। अधर्म क्या है? अधर्म यही है। अधर्म का मतलब ड्रग्स लेना, अधर्म का मतलब शराब पीना, अधर्म का मतलब हो गया कि नशे में रहना, धुत। अधर्म का मतलब हो गया किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ अत्याचार करना। अधर्म का मतलब गलत आचरण करना। तो गलत आचरण में मतलब धर्म के बिना अगर कोई व्यक्ति यानी धार्मिक स्थल पर नहीं है या धर्म से दूर रहना चाहे, राजनीति को अगर हम लोग धर्म से दूर कर देंगे तो वहाँ क्या होगा? सारे गलत आचरण, जो मैंने अधर्म बोला, अधर्म वहाँ पे घुस जाएगा। अधर्म घुसेगा तो क्या हुआ था? दशानन वाला हालत हो जाएगा कि दशानन ने जिस प्रकार से जो रणनीति बनाई थी कि हमेशा नशे में धुत रहता था, दुर्धा करता रहता था, और देखिए किस प्रकार से उसकी सत्ता चाणक्य ने आके डुबा दी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए दिखाता हूँ मैं कुछ एल्बम। अब तक तो आपने बहुत कुछ एसएमएस के बारे में जान लिया होगा, क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कब आएगा या आ भी गया। सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए साधु विशाल मिश्रा के साथ। वेबसाइट है sadhuvishalmishra.com। व्हाट्सएप नंबर है 9768518214। +91 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इंडिया से बाहर से कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है admin@sadhuvishalmishra.com। प्लेटफॉर्म है
www.sadhuvishalmishra.com। वहाँ पे जाइए, अपने आप को खोजिए, आपके अंदर क्या है, कुछ तो होगा। टैलेंट है, खाना बनाने आता है, नाचने आता है, गाना आता है, कुछ तो आता है, कुछ तो करने तो आता है। आप जन्म लिए हो, कुछ तो कर रहे हो, कैसे भी हो, कैसा भी शरीर हो, जिंदा तो हो, कुछ तो कर रहे हो। लिखो, वहाँ पे डालो, डायरी में नोट करो, प्रश्नों का उत्तर खोजो, लोगों से पूछो, ना जवाब मिले तो गूगल से पूछो, एआई से पूछो। कौन मना कर रहा है? आप ज्ञान पाओ, ज्ञान में बहुत शक्ति है। और ध्यान करो, ध्यान में उससे भी ज्यादा शक्ति है। ध्यान से ही आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी तस्वीरें जो हैं एआई के द्वारा बनाई गई है। लोग बोलते हैं एआई का सहारा लेते हो। हाँ भाई, लेता हूँ, एआई का सहारा बनाया गया है यूज़ करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें निकल के कहाँ से आती हैं? मैं इन तस्वीरों को मन में सोचता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो ये तस्वीरें मेरे फॉरहेड पे सामने आती हैं, जिसे मैं शब्दों में पिरोता हूँ। शब्दों में पिरोने के बाद जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है वो मैं सुनता हूँ, और फिर उस निष्कर्ष से निकल के संक्षेप में जो बातें आती हैं, जो दृश्य आता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जुड़िए मेरे साथ। मैं हूं साधु विशाल मिश्रा। ना तो मैं किसी का बॉस हूं, ना तो किसी का पीए, ना तो किसी का चमचा हूं, ना तो मैं नेता हूं, ना तो मैं गुरु हूं, ना तो शिष्य हूं। मैं हूं सर्वे सर्वा, मैं अपनी ही दुनिया में मस्त हूं। आग्रह करना चाहूंगा लोगों से जो अपनी लाइफ ना देखकर दूसरों की लाइफ में दखल देखते रहते हैं। खुद को जानिए, आप इस धरती पे आए हैं क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ है। उस उद्देश्य को पहचानिए, ध्यान कीजिए, मन में सवाल आएंगे। बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता। पहले शरीर को मजबूत करना पड़ता है। टेक केयर कीजिए, टेक योरसेल्फ बोलते हैं ना हम लोग। शरीर का ध्यान रखिए, मन का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने उठने का ध्यान रखिए। जैसे आप शरीर के लिए कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। दिमाग में अगर कुछ तकलीफ, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, उदासी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, आप मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाइए। क्यों आप जाने से कतराते हैं? मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास लोग कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। भाई, उनके अंदर क्या इमोशन चल रहा है, वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो कुछ मेडिसिन्स के द्वारा उस इमोशंस को मॉडिफाई किया जाता है। आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, डोपामाइंस जो होती हैं, सेरोटोनिन्स जो होती हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाता है ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। अगर आप नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे तो अपना बिजनेस कैसे करेंगे? अपना प्रोफेशन में 100% कैसे देंगे? आपको 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट यस, you have to give your best. You have to take care your life, your family, your society, your nature, your earth, your universe, everything. You have to take care of the SMS Foundation. दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर दुनिया में इतना कुछ कर सकते हैं जिसका कोई एक इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जब मैं ये 830 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का इंडियन करेंसी में प्रोजेक्ट बना सकता हूँ बस चंद महीनों में, तो सोचिए
मेरे से ज़्यादा कितने ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जिन्होंने इस एआई सिस्टम को बनाया। उनके पास कितना ज्ञान है, उनके पास कितना पावर है, उनके पास कितना पैसा है। जरा सोच के तो देखिए, दुनिया क्षण भर में बदल जाएगी। बस चाहत है तो थोड़ा शांत होने की, थोड़ा रुकने की। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए। ये पैगाम, ये संदेश, ये मैसेज टू द वर्ल्ड। This is the message to the world from Sadhu Vishal Mishra, speaking and playing this video at the stage of UNGPC. आप गूगल कर लीजिएगा, पूरा नाम नहीं लूँगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मुझे भी, कुछ गाइडलाइंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। और आप जुड़िए, धीरे धीरे आपको भी ये गाइडलाइंस मालूम पड़ेगी। अवार्ड्स तो काफ़ी मिले मुझे, खुश तो बहुत रहा मैं, लेकिन अब जिंदा हूँ। आते रहेंगी आपके पास वीडियोस, तरह तरह के टॉपिक्स, लेकिन क्या करें, कुछ एल्गोरिदम हैं, कुछ सिस्टम है। अगर मुझे समाज में रहना है, समाज की सेवा करनी है, समाज में रह के, तो मुझे भी समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहिए, अपना जॉब, अपना बिजनेस हमारे साथ साझा कीजिए। कोई भी तकलीफ हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, पूजा हो, पाठ हो, कोई भी धर्म हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे। बेयर मिनिमम फीस है, पूछिए तो सही, सही सवाल सही इंसान से पूछिएगा तो आपको सारा कुछ जवाब मिलेगा। आधा से ज़्यादा जवाब तो आपके मन में ही छिपा है। जरा ध्यान तो कीजिए, देखिए कैसे कैसे सवाल उठ के आते हैं और कैसे कैसे आपको जवाब मिलते हैं। रिफ्लेक्शन लिखिए, रोज 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, जितना मन चाहे लिखिए। ऐसे वैसे रील देखने से अच्छा है ज्ञान की बातें देखिए, कुछ बोलना सीखिए, मौन रहना सीखिए, सुनना सीखिए, देखना सीखिए। अभी तक तो आपने देखना भी नहीं सीखा, ना तो सुनना सीखा, ना तो बोलना सीखा। किस बात का गर्व करते हैं आप? ये शरीर का, जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, इस मन का, जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है। आप खुद ही अपनी लाइफ में उलझे हुए हो। जरा इस उलझन को सुलझा के तो देखो, ध्यान करके तो देखो, आएगा मजा। अब बरसात का, इसके आगे आप लिखेंगे कमेंट्स में। ये जो गाना है, इसकी सारी स्क्रिप्ट उठा के लिखिए, कमेंट्स में बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीन पे कितनी बार शो हो रहा है, कितनी बार बोला भी जा रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9768518214। इंडिया +91 9768518214। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहकर विदा लूँगा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान करते रहिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। हमसे संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा है। तो मिलेंगे एक नए रूप में, जिसमें होगा सतयुग 2.0 की झलक इस द रियल SMS ग्रुप के द्वारा। हमसे जुड़े रहिए और
द रियल एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोलैबोरेशन कीजिए। फ्री है कोलैबोरेशन। आइए बिजनेस साझा करते हैं साथ मिलके और देखते हैं ये दुनिया कितनी हसीन है। हर हर महादेव, जय महाकाल। Desi Dwer Doper Budurt PM. Sthan Sumitacharya Guru. Image 9 minute ka dhyan. Desi Dwer Doper Budurt PM. Sthan Sumitacharya Gurukul Bihar. आज ठीक डुअरबर्ग पीएम पर 9 मिनट का ध्यान फर्श गहरी श्वास प्रश्वास के साथ आरंभ हुआ। श्वास डुएल्व से महामौन की ओर गई, जहां देह वायु में विलीन हो गई, सूर्य प्रकाश चेतना में बदल गया फीसा, और एक अवस्था आई जहां मैं ब्रह्मांड में था और ब्रह्मांड मुझ में था। इस ध्यान में कुंडलिनी जागरण की स्पष्ट अनुभूति हुई। सभी चक्र अपने अपने रंगों में सक्रिय दिखाई दिए, मूलाधार से सहस्रार तक। एक वटवृक्ष के नीचे एक प्रतीकात्मक कुंडलिनी जागृत साधु दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, मेरा ही वास्तविक स्वरूप था। चेहरा युवा, शांत, स्थिर। भले ही ये शरीर 63 वर्ष का हो, पर यह शरीर जन्म से अब तक कई बार बदल चुका है। चेतना नहीं बदलती, केवल आवरण बदलते हैं। योगिक दृष्टि, यह अवस्था प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की संयुक्त स्थिति है। देहबोध का लय और साक्षी भाव की स्थापना, कुंडलिनी शक्ति का संतुलित प्रवाह, स्थिर प्रज्ञा की झलक। ये कोई पलायन नहीं है। बिजनेस और जीवन का सूत्र। आज की दुनिया अनावश्यक शब्दों, शोर और तनाव में उलझी है, जबकि सफलता का मूल सूत्र बाहर नहीं, भीतर है। हर सफल व्यवसाय, नौकरी या प्रोफेशन की शुरुआत होती है सेल्फ केयर, देह की देखभाल, ब्रेन केयर, सोल फ्रीडम्स, आत्मिक स्वतंत्रता। जब मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब श्वास संतुलित होती है, ऊर्जा सही दिशा में बहती है। जब चेतना जागृत होती है, नेतृत्व स्वतः प्रकट होता है। ओपन कोट। बिजनेस बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो स्वयं को साध लेता है, वही संसार को दिशा दे सकता है। क्लोज कोट। मौन, निरीक्षण, जागरूकता और आत्मविश्वास, यही आज के युग की सबसे बड़ी पूंजी है। साधु विशाल मिश्रा, sadhuvishalmishra.com। Understanding. A message to the world from Sadhu Vishal Mishra. SMS is a foundation of collaboration. It is not limited to online platforms, social media, physical stages, or corporate spaces alone. It is a living ecosystem, connecting professionals, innovators, investors, farmers, students, children, women, men, and all forms of life that share this planet. I respect nature in its entirety, animals, birds, rivers, forests, seas, and I acknowledge the past, remain aware of the future, and live fully in the present moment. I am alive. I am aware. I am grateful. I bow in gratitude to Lord Ganesha, Lord Shiva, Kartikeya, and Lord Hanuman. I honor my teachers, guides, well-wishers, friends, and everyone who has crossed my path, even briefly. Every encounter has been a lesson. Every moment has been a teacher. I hold no complaints against anyone. I choose peace over conflict. I choose responsibility over reaction. I live my life consciously. I hear clearly. I sleep well. I eat well. I care for my body. I take my medications on time. I consult mental health professionals regularly. I stay grounded in daily discipline and routine. I walk this path with guidance and support, including the presence of Sumi Tacharya Ji Maharaj. My work, reputation, and livelihood are growing steadily through honest effort and collaboration. I speak when needed, I act when required, and when I remain silent, it is by choice, not weakness. My silence is my strength. My awareness is my responsibility. My life is my journey. You live your life your way. I will live mine with clarity, balance, and respect for all. Sadhu Vishal Mishra.
You live your life your way. Let me live mine fully and consciously. I harm no one, I impose on no one. Freedom with responsibility, that is my choice.